हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में। राइट नाउ December 2024 marked a very important and historic occasion wherein Prime Minister Modi became the first Prime Minister after close to 43 years to visit Kuwait, a very important country in the Gulf. राइट पर्टिकुलरली इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी क्रूड ऑयल टाइज जो हैं कुवैत के साथ इंडिया बहुत ज़्यादा घनिष्ठ टाइज जो हैं इंजॉय करता है। आपने मुझे कमेंट से बताना है कि इससे पहले 1981 में हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया who had visited Kuwait, right? This is something that you have to tell me in the comments below. Very importantly, as a sign of the significance of the meeting, Prime Minister Modi was also accompanied by a Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, as well as our National Security Advisor Ajit Doval. Right? Particularly because West Asia जो है, Middle East जो है, इंडिया के जो geopolitical calculations है, and given the kind of tensions and trials and tribulations that have been happening in the Middle East, right? यहाँ पे जो security concerns है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं. This is something that time and again Prime Minister Modi has also emphasized upon, and this has been agreed by the Kuwaiti counterparts as well, right? So counter terrorism हो गया, security हो गया, anti-piracy operations हो गया. These have been some of the cornerstones that have really pushed forward the India-Kuwaiti relationship. And adding another feather in the cap in the relationship between the two is the agreement जो कि इस visit के time पे हुआ, that the partnership, that the relationship between the two countries will now be elevated to be what is called a strategic partnership, right? तो हमें पता है कि इंडिया जो है बहुत सारे डिप्लोमेटिक लेवल्स ऑफ पार्टनरशिप्स जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ करता है, राइट? तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप्स हो गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो गई, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई. तो अब जो है इंडिया एंड कुवैत का रिलेशनशिप जो है एलिवेट कर दिया गया है टू बीइंग अ स्ट्रेटेजिक partnership. And this means that more than even before, एक more diversified portfolio जो है ये बनाना चाहेंगे, जिसके बेसिस पे दोनों कंट्रीज के बीच की जो रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है, उसे एक्सपैंड एंड डीपन किया जा सके, राइट? एंड दिस वाज इन फैक्ट रिफ्लेक्टेड इन द नंबर ऑफ pacts and MOUs that were also signed between the two countries, right? So they realized that yes, a major plank of the relationship has been to do with energy ties, particularly fossil fuel जो हमारा crude oil है उसके basis पे. तो अब अगर हमने, and particularly not just for India but even Kuwait which has this vision 2035, right? तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में countries have come to realize that they can't just rely on fossil fuels and export of crude oil to support their economic development throughout, and there is the need for diversification. and ये reflect भी हो रहा है. हम UAE के अंदर देखते हैं जिस तरह से टूरिज्म के ऊपर वो बूस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से रिन्यूएबल्स के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं. सिमिलरली सऊदी अरेबिया की जब हम बात करते हैं, उनकी जो विजन 2030 है, या फिर अब कुवैत जिसने हाईलाइट किया है the need for diversification in its vision 2035, and very importantly India ने उनको ensure किया है that India is going to be a stable, a reliable partner when it comes to moving forward towards this vision 2035 that Kuwait holds, because it will prove to be very beneficial as a partner for India as well. What is even more important जो आपको पता होना चाहिए, not just for option but in fact for even PSI, not just for PSI but even prelims purpose, is it is Kuwait which is holding the presidency of the very important Gulf Cooperation Council, the GCC. 1981 में फॉर्मुलेट हुई थी, एंड इनफैक्ट इसको बनाने का एक जो पुश था, वो पुश भी जो है आया था फ्रॉम टू कंट्रीज के लीडर्स, वन ऑफ विच वाज कुवैत, राइट? कुवैत एंड UAE दोनों ने ही ये मेजर पुश किया था कि गल्फ needs to act and coordinate together, and therefore we need to have some kind of a body जिसके बेसिस पे बन के आई थी द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल in 1981 with its headquarters in Riyadh, Saudi Arabia. तो सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ओमान, कुवैत जो है इसके
मेंबर्स हैं, राइट, और ये मेंबर्स जो हैं कंप्राइज करते हैं द जीसीसी, ठीक है, जो कि एक मेजर ब्लॉक जो है बन के आ जाती है, ठीक है। तो ये जो 5 मेन मेंबर्स है ऑफ कुवैत, कतर, UAE, Oman and Saudi Arabia constitute this regional intergovernmental political and economic union called the GCC. Now moving on, जैसे कि हमने बात की 43 इयर्स बाद जो है किसी प्राइम मिनिस्टर की विजिट आई, जहाँ पे इन्होंने जो आमिर है, जो उनके शेख हैं, जो मेन हेड हैं, शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा, उनसे ये मिले। साथ ही साथ में जो इनके क्राउन प्रिंस है उनसे भी मुलाकात हुई, एज वेल एज इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले। What is very important, and again an important fact that you must remember in case a question comes, right, that which of the countries has conferred the order of Mubarak al-Kabir on Prime Minister Modi? कौन सी कंट्री ने किया है? कुवैत ने किया है, एंड दिस इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ कुवैत, जो कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया। एंड एज अ पार्ट ऑफ द सेम वेरियस MOUs जो है साइन किए गए हैं, राइट, डिफेंस को लेके, एनर्जी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, कल्चर को लेके, जिनके ऊपर ये काम करना चाहते हैं, राइट। नाउ एनर्जी कोऑपरेशन, एज वी टॉक्ड अबाउट, दैट वन ऑफ द मेजर प्लैग्स फॉर विद एनी मिडल ईस्टर्न, विद एनी वेस्ट एशियन कंट्री फॉर इंडिया हैज बीन क्रूड ऑयल, एंड कुवैत जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ क्रूड ऑयल, मीटिंग क्लोज टू 3% ऑफ इंडियाज energy needs. However, as there is a move towards diversification, towards renewable, now they want to move away from a traditional what they call buyer-seller relationship, जहाँ पे कुवैत बेसिकली एक्सपोर्ट करता था और इंडिया इंपोर्ट करता था। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया के पास फैसिलिटीज हैं, पैसा है, नो हाउ है in really contributing as far as upstream and downstream sectors in energy production is concerned, right? तो यहाँ पे अब ये कोऑपरेट करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपके ऑयल एक्सप्लोरेशन में, राइट, तो इंडिया जैसे कि बहुत सारी जगहों पे ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा की एक्सप्लोरेशन के अंदर जो है हेल्प कर सकता है, तो वहां पे रिफाइनिंग के अंदर, तो अब ये क्या है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों ही चीजों के अंदर ये करना चाहते हैं। साथ ही में ये पेट्रोलियम, ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करना, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन सब के अंदर भी जो है ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं। Very importantly, Kuwait has also agreed to become a partner in India's strategic petroleum reserve program, right? And very importantly, this move towards diversification, towards encouraging renewables, and towards Kuwait actually becoming a part of India's strategic reserve program means कि दोनों के दोनों जो है एनर्जी स्टेबिलिटी के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे हैं, राइट, ताकि स्टेबल प्राइसेस रहे, स्टेबल प्रोडक्शन रहे, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहे, एंड एनर्जी के अंदर जो है दोनों ही कंट्रीज की जो डिमांड्स है वो फुलफिल होती रहे। मूविंग अपार्ट फ्रॉम दिस, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज अनदर एरिया जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। Over the years, India and Kuwait have really witnessed an upswing as far as their bilateral trade relations are concerned, right? The bilateral trade in 2023-24 reached close to $10 billion, जहाँ पे इंडिया के जो exports थे to Kuwait, those grew by nearly 35%. And very importantly, in export के areas में pharmaceutical products, agricultural products, साथ ही साथ में high end aircraft, spacecraft के accessories and जो parts हैं, ये सारे ही इसके हिस्सा थे। Very importantly, PM Modi also invited a delegation of the Kuwaiti Investment Authority and other stakeholders ताकि वो आके इंडिया के जो growing sectors हैं, right, उनके अंदर invest कर सके, including pharma, food parks, right, food processing is a major area for food security जहाँ पे West Asia जो है focus कर रहा है। आबू धाबी में इसके ऊपर global food security को लेके summit भी हुआ है, so this is a very very good area for them to invest in, right? Both of them have also agreed towards fast tracking a bilateral investment treaty जिसके थ्रू जो है clear transparent framework मिल जाएगा for businesses to invest in each other's markets, particularly the really rapidly growing areas of infrastructure, healthcare as well as digital technologies.
Now, apart from this, India really wants to collaborate with the Gulf at large as well. Right now, with Kuwait also assuming the presidency of the GCC, this presents a dual opportunity for India. Not just deepen partnership with Kuwait, but also enhance its relationship with the GCC. And one of the areas is really fast tracking and working upon and resuming the talks for the India GCC trade agreement. Now, in 2022, negotiations had started for the trade agreement, and now again Kuwait has ensured its full support ताकि ये जो agreement है फटाफट finalize हो सके एंड ग्रेटर कोऑपरेशन जो है इंश्योर की जा सके अंडर जॉइंट एक्शन प्लान फ्रेमवर्क. Very importantly, Kuwait on 1st December 2024 had also hosted the 45th GCC summit, जहां पे बहुत सारे ऐसे एरियाज जो कि इंडिया के कंसर्न एरियाज हैं वहां पे काम किया गया, इंक्लूडिंग द 21st जॉइंट डिफेंस काउंसिल प्रपोजल्स, जहां पे मिलिट्री इंटीग्रेशन की बात हो रही है पहली बार जीसीसी कंट्रीज के बीच में. साथ ही में एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, राइट, all the GCC countries have collaborated on really aligning their development with the COP28 agreement as well as the very important Middle East Green Initiative. ये Middle East Green Initiative जो है 2021 में सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया था, जहां पे सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये रियली पुश करना चाहते हैं वेस्ट एशिया को. राइट नाउ MGI कवर्स प्लांटिंग ऑफ क्लोज टू 50 बिलियन ट्रीज, ताकि जो एरिड एरियाज है उन्हें सस्टेनेबल बनाया जा सके, उन्हें जो है इम्प्रूव किया जा सके, रिड्यूसिंग 60% ऑफ कार्बन इमिशंस बाय मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग मरीन एंड लैंड इकोसिस्टम्स ऑल्सो for fostering sustainability. Right, this is also aligned with Saudi Arabia's vision of Saudi Vision 2030, जहां पे ये एक more resilient, एक greener, एक more sustainable region of West Asia जो है बनाना चाहते हैं. साथ ही में कोलैबोरेशन एज पर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट जो कि 2024 में UAE में और अबू धाबी में हुआ था, राइट, वहां पे भी इंपॉर्टेंटली एड्रेस किया गया था कि जैसे जैसे वर्ल्ड के अंदर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, फूड बढ़ती जा रही है, ग्रेटर पार्टनरशिप्स आर रिक्वायर्ड टू रियली इंश्योर सिक्योरिटी इन दीज डोमेन्स एंड इंडिया कैन बी अ वेरी क्रेडिबल पार्टनर हियर. Now, apart from this, there were also various other initiatives, defense के अंदर particularly to ensure cooperation and training in various military exercises, supply of defense equipment, ये जो है साइन किया गया है. एक और बहुत important MOU आया है in the form of the cultural exchange program from 2025 to 2029, जहां पे कल्चर के एरियाज में, फेस्टिवल के एरियाज में डांस, आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, राइट, कोलैबोरेशन की जाएगी, एक्सचेंज जो है इंश्योर किया जाएगा. देन स्पोर्ट्स इज अनदर एरिया जहां में नॉट जस्ट कुवैत बट इंटायर जीसीसी बहुत फोकस कर रहा है. यहाँ पे अगेन एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की शुरुआत की गई है बायलैटरल कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली बाय प्रमोटिंग एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स लीडर्स, जहाँ पे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके. राइट, सो फॉर एग्जांपल जो हमारा वेस्ट एशिया है, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज ऑलरेडी फुटबॉल जैसे एरियाज में बहुत ज़्यादा एक्टिव है. क्रिकेट, हॉकी कैन बी अदर एरियाज जहाँ पे इंडिया अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है कर सकता है. Another major highlight of the visit was Kuwait's membership in the International Solar Alliance, जहाँ पे as part of diversifying the renewable energy portfolio, यहाँ पे जो है greater collaboration देखी जाएगी. Now, very importantly, while the strategic partnership marks a huge upswing, right, India and Kuwait के partnership in the past have also been great, right. In fact, 2021 had marked 60 years of diplomatic relationship between the two countries. डायस्पोरा जो है, कल्चरल एक्सचेंज तभी हाईलाइट किया गया है क्योंकि मैसिव डायस्पोरा जो है एग्जिस्ट करता है. आपको याद होगा देयर वाज आल्सो एन इंसिडेंट, राइट, जब कुवैत की सिक्योरिटी हैम्पर होती है, इंडिया का डायस्पोरा जो है उनके लिए भी चैलेंज बन जाता है, राइट. तो आपको अगर याद हो तो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, राइट, विच एक्चुअली टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड. इफ यू रिमेंबर यू कैन टेल मी इन दी कॉमेंट्स बिलो कौन सी मूवी थी और किस एपिसोड को जो है ये रेफर करती थी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडिया एंड कुवैट्स relationship. Then during COVID-19 pandemic also both the countries emerged as reliable partners for each other. 2021 की इंडिया का जो ऑक्सीजन क्राइसिस था
उस टाइम पे कुवैत रियली हेल्प्ड इंडिया बाय सप्लाइंग मेडिकल ऑक्सीजन टू इंडिया जब शॉर्टेजेस विटनेस कर रहा था, whereas इंडिया रियली सेंट अक्रॉस इट्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेडिसिन, वैक्सीन्स टू कुवैत, राइट, जिन एरियाज में उनका जो है एक स्टैंड पॉइंट है। डिफेंस के एरियाज में भी 2022 में इंडिया की जो नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS कोलकाता, इट हैड विटनेस्ड कुवैत, right, to reinforce defense ties and conduct exercises with the Kuwaiti army. 2023 में as a part of a goodwill mission, INS विशाखापट्टनम जो है that has had visited Kuwait. तो गल्फ ऑफ एडन के एरिया में पायरेसी को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया really collaborates with Kuwait. Now again, one has to importantly realize that this partnership with Kuwait is a part of a larger Look West activist की जो हमारा पुश है जो कि इंडिया की तरफ से आ रहा है, जो कि बहुत जरूरी बनता जा रहा है एंड वेरियस स्कॉलर्स ने हाईलाइट किया है क्यों ये जरूरी है। सी राजा मोहन एक बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट आगे रखते हैं, कहते देखिए जो मर्जी हो जाए, इंडियाज मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा की हम बात कर ले, बट आज भी इंडिया जो है एनर्जी के लिए वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट रहता है, राइट, एंड डीपनिंग टाइज विद गल्फ कंट्रीज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करती है। माधवदास नालापट ऑन द अदर हैंड सेज दैट गल्फ एंड जिस तरह से ग्रो कर रहा है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यू है। देयरफॉर इन एरियाज में ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें इनके साथ कोलैबोरेशन चाहिए। हर्षवी पंत वहीं पे हाईलाइट करते हैं कि जियोपॉलिटिकली ये वेस्ट एशिया का रीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, सो एज टू इंश्योर इंडियाज ओन सिक्योरिटी एज वेल एज एन अपर हैंड इन द ग्रेट पावर राइवलरी जो कि ये चाइना के साथ विटनेस कर रही है, राइट। देयरफॉर गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना फॉर maritime sea lanes, right, for ensuring counter-terrorism operations and for counterbalancing China is of utmost importance. Then scholars like Shashi Tharoor obviously highlight करते हैं that West Asia के अंदर इंडिया का डायस्पोरा इतना ज़्यादा human capital है. Therefore, by fostering deeper ties and goodwill, this will only secure India's cultural and human capital जो कि गल्फ के अंदर exist करते हैं, and that is why continuously both on bilateral basis, regional basis, multilateral forums के अंदर इंडिया को गल्फ के साथ greater collaboration करने की जरूरत है, which will ensure interests की fulfillment for all the partners involved। ठीक है, तो चलिए होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली शुरुआत में विश करना मैं भूल गई थी, बट अ वेरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड 24 to 26 दिसंबर हम जो है एक कूपन कोड चला रहे हैं एक्सक्लूसिव, राइट, विद ऑफरिंग अ बिगेस्ट एवर ईयर एंड डिस्काउंट विच इज 25% ऑन ऑल आवर कोर्सेज। तो अगर आप प्रीलिम्स के कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप कोई फाउंडेशन के कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप कोई करंट अफेयर्स के कोर्सेज जो हैं उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे पास करंट अफेयर्स के कोर्सेज हैं ऑप्शनल्स के लिए भी, जीएस के लिए भी, ठीक है। अगर आप कोई मेंस आंसर राइटिंग के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑप्शंस के लिए या जीएस के लिए, ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट। या फिर आप कोई सीसैट के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, सब पे आपको 25% ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग द कोड MERRY25, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो दो स्टूडेंट्स जिनका मेंस क्लियर हो गया है, आप हमारे IGP के पेज पे जा सकते हैं। हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ मॉक इंटरव्यूज की डेट जो है आ गई है एंड यू कैन एनरोल फॉर द सेम, राइट। उसके अलावा अगर आप अपने डाफ से जुड़े पर्सनलाइज क्वेश्चंस भी चाहते हैं वो भी हमारे पेज पे अवेलेबल हैं एंड उसको आप जाके अवेल कर सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।